हाय गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल के एक नई वीडियो में। और आज हमारे साथ इस वीडियो के लिए जुड़ चुके हैं मयंक संथालिया। मयंक is a chartered accountant and he has secured all India ranks in both the levels. He secured all India rank 20 in IPCC and all India rank 17 in CA panel. And Mayank is currently working with ONGC as a finance and accounts officer. So Mayank, first of all, thank you so much for coming on the channel. Thank you so much, Dhuman. It's my pleasure on your platform, and I would like to thank the entire team of Fraternity who is doing splendid work and creating impact at the macro level. थैंक यू सो Congratulations. थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी थी एंड इवन आई वेंट थ्रू योर यूट्यूब वीडियो। सो यू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सो लेट्स गेट बैक टू दोज डेज। कैसी थी आपकी इनिशियल जर्नी बिहार में? So, Dhuman, I was born in Bihar. वहाँ पे you have a town called Kahalgaon. I got my foundational literacy there. So, वहाँ का environment ऐसा था कि you are not आपकी अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में नहीं होती है, राइट? सो आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हो एंड वहाँ पे मेन फोकस आपकी स्टडीज पे रहती है। सो लाइक दिस डेज व्हेन यू सी चिल्ड्रन, they are not only good in studies, but they are very good in co-curricular activities as well, right? So मेरी जो जर्नी थी बिहार की वो कुछ ऐसी ही थी। We were very much engrossed in our studies और very humble background. So I lost my father at a very tender age, like when I was 2. So it was very difficult for me to, for my mom especially, to raise me up. बट वो क्या होता है कि लाइफ में चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ती है और बहुत बार हमारी जो फ्यूचर होती है उस चैलेंजेस की वजह से मोल्ड होती है और बहुत ब्राइट होती है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने वो सारे सिचुएशंस फेस की। बट नेवरदलेस इट्स ऑलवेज पेशेंस एंड परसिवियरेंस which keeps you moving, right? So whatever was the culture gap, so post my foundational literacy, I moved to Calcutta, and वहाँ पे I got admission in one of the best schools of the city, which DPS, which has its presence pan India, right? And but there was a culture gap, no doubt in that. But what is always required in you is the hard work, right? Which keeps you moving every time. So things were not good, but I will not say it was worst, right? Things were not good. I am not complaining about my past, but what I am want to tell you in your platform is that what whoever sees my video, that they must get motivated, right? That because हमारी life यूं एक straight highway की तरह नहीं होती. It is always full of ups and downs, ups and downs. It's a like a roller coaster ride. So that's perfectly fine, but you should always have a positive attitude. That's it. That rest everything will fall in place. यस मैम। सो मैम, आपने अपने यूट्यूब वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया था दैट व्हेन यू शिफ्टेड फ्रॉम बिहार टू कैलकाटा तो आपको बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस हुए, बी इट द कल्चरल डिफरेंसेस या फिर बी इट गेटिंग अलॉन्ग विद द पीपल। सो ऐसा देखा गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि एक छोटे टाउन से दूसरे बड़े टाउन में मूव करते हैं फॉर रेगुलर कॉलेज और फॉर गेटिंग एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, उनको ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होती है। तो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन आपको किस टाइप की डिफिकल्टीज फेस हुई एंड आपने कैसे डील किया उससे। See, the first difficulty which you generally face when you move to a big city is the interaction and your soft skills, right? Your interpersonal skills are not as much developed as it's expected from you in a city. So आप उसके लिए क्या करोगे? So you have to work on yourself, that's it, and you need to have a very good positive attitude. That's it. So चीजें ऐसी भी होंगी लाइफ में कि sometimes you will feel like कि भाई गिव अप कर दे, अब नहीं हो पा रहा है। बट जीना इसी का नाम है, राइट? सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ मूविंग। यू हैव टू कीप योरसेल्फ मूविंग। बहुत बार ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि हु विल ट्राई टू शो यू डाउन और बहुत सारी चीजें होती है, स्पेशली इन बिग टाउन। बट वंस यू प्रूव योर कॉम्पिटेंसी, वंस यू प्रूव योर कैलिबर, देन पीपल की नो कि भाई हाँ इसमें भी दम है, एंड देन यू कीप ऑन मूविंग। सो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ, मैंने जितनी अपनी सीए जर्नी में मैंने देखी है कि जितने बच्चे सीए करते हैं, स्पेशली मैं कलकत्ता की यदि बात करूँ, तो मैक्सिमम बच्चे बाहर के होते हैं। मतलब ओके। लोकलाइट बहुत कम होते हैं। बहुत सारे जैसे पोद्दार छात्रा निवास, जो कि वन ऑफ द प्रीमियर हॉस्टल है कलकत्ता की, या राम भवन बोल लीजिए, तो वहाँ पे सारे बच्चे जो बाहर से आते हैं, और मैं ये बताता हूँ कि मैक्सिमम सीएस वहां से ही बनते हैं। जैसे पोद्दार छात्रा निवास को सीए फैक्ट्री बोला जाता है, और वहाँ के मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो स्मॉल सिटी, स्मॉल विलेज से होते हैं, राइट? तो ये एक
एटीट्यूड का ही एक डिफरेंस है जो एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल को सेपरेट करता है। और फेलियर कुछ नहीं होता, आइदर यू सक्सीड और यू लर्न, दैट्स इट। और वो अभी एक वेब सीरीज आई थी, हर्षद मेहता स्कैम, उसमें वो बोलता है ना, व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस इज द चैप्टर नेक्स्ट टू फेलियर, Yeah, राइट। true. सो स्मॉल टाउन से बच्चे आते हैं, पढ़ते भी और सक्सीड भी करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बट बहुत सारे लोग ऐसा है कि आज के दिन काफी मैं सीएफओज और लोगों को फॉलो करता हूँ जो कि मेरे टाउन से हैं, मेरे खुद के टाउन से। बहुत सारे पार्टनर्स हैं बिग फोर्स में, जो कि जहाँ से मैं बिहार में था, मेरे खुद के टाउन से, मैं उनको जानता हूँ। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो ये तो मेरे लिए इंस्पिरेशन होता है कि भाई हम दोनों सेम जगह से थे, बट आज उन्होंने वो सक्सेस किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। True, man. तो हमेशा आपको क्या है कि लाइफ में एक टारगेट्स रखने पड़ेंगे, लाइफ में आपको एक किसी को एक आइडल मानना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन सक्सीड। और बहुत सारी प्रॉब्लम क्या होती है यंगस्टर्स में, हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर, हमारी लड़ाई खुद से है एक्चुअली। वी शुड मेक आवरसेल्फ बेटर एवरी डे। ऐसा नहीं है कि हम, यदि मैं सोचूं कि मुझे एक्स वाई जेड से कंपेयर करना है अपने आप को, एंड आई कीप ऑन ब्रैगिंग कि भाई मैं नहीं कर पा रहा, तो वो चीजें कभी भी मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी नहीं लाएगी। मुझे देखना है कि मैं आज क्या था, मैं कल क्या था, और मैं कल क्या रहूंगा। यदि मेरा कल का जो स्कोर है वो आज प्लस डेल्टा है, देन आई एम ऑन अ विन विन साइड, राइट। Yeah. तो दिस इज द वे यू कैन कीप ऑन मूविंग। और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने बोली कि आप मोटिवेटेड कैसे रखोगे अपने आप को, तो उसकी बहुत सिंपल से आंसर ये है कि भाई आप अपने पेरेंट्स को दिमाग में रखो, उनके स्ट्रगल्स को दिमाग में रखो, उनकी स्माइल्स को दिमाग में रखो, तो आप मोटिवेटेड तो अपने आप ही हो जाओगे, राइट। एंड मैं इवन मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को देखा है जो कि एक स्मॉल टाउन से बिग टाउन में मूव करते हैं। जो भी लोग ये ट्राई करते हैं कि वो इंट्रोवर्ट ना रहे, उन्होंने काफ़ी अच्छा सक्सेस पाया है या फिर वो काफ़ी अच्छा सीख पाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे एक बंदा जो कि इंट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट बन सकता है? सबसे पहले हम, पता है एक्सट्रोवर्ट क्यों नहीं बनते या हम लोगों से क्यों नहीं बात करते हैं? द प्रॉब्लम इज, हमें डर लगता है कि वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, राइट। बहुत बार क्या होता है, जब बच्चे स्मॉल टाउन से आते हैं तो उनका एसेंट जो होता है इंग्लिश स्पीकिंग का, वो काफी खराब होता है, एंड उन्हें बहुत शर्म आती है, दे फील शाय इन टॉकिंग विथ एवरीवन। दे फील कि भाई वो हमें कुछ ऐसा बोल देगा, हमें बुरा लग जाएगा, तो उनका मोरल वहीं पे डाउन हो जाता है। तो वहां पे मैं सबसे अच्छी बात ये बोलता हूँ कि यदि आपको अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी करनी है, आप कुछ नहीं, आप कस्टमर केयर में बात करो, हर कंपनी के कस्टमर केयर में, और कुछ भी उसको इंग्लिश में खाली बात करो। ये एक तरीका होता है, आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग इनहेंस कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है आप वहां से भी सीख सकते हो। एंड देन क्योंकि आप जब मल्टीपल लोगों से, ऐसे तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। आप कस्टमर केयर को फोन करो, उनको बोलो आप इंग्लिश में मेरे से, वो आता है ना कि हिंदी के लिए एक दबाइए, इंग्लिश के लिए दो दबाइए। या आप वहां से भी चीजें बहुत, ये बहुत छोटी सी बात है, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट। मैंने बात किया कुछ लोगों से, उन्होंने भी मुझे ये बताया कि वो मतलब ऐसे रैंडम बैठे हुए हैं, कस्टमर केयर को फोन कर लेंगे एंड दे विल स्पीक ऑन इंग्लिश, कि भाई हमें उन्हें इंग्लिश नहीं आती हुई, बहुत टूटी फूटी आती है, बट लेकिन हाँ वो बोल इंग्लिश में उनसे बात करते हैं। और कि दूसरी आप बात ये जो आप, कहना चाह रहे हो कि किसी ऐसे बंदे से बात करो जो आपको जज ना करे? एग्जैक्टली ये आपने सही बोला, जो आपको जज ना करे। तो आपको क्या होगा कि जो आपकी बेसिक लैक्यूनास है, जो मतलब जो बोलते हैं ना आपकी फंडामेंटल्स जहाँ पे कमी है, वो हम्म, आपको वहां पता चल जाएगी। उसके बाद देखो, कमी तो सब में है। आज मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसी बातें होगी जो मेरे को नहीं बोलना चाहिए या कुछ या गलत होगी, राइट। तो वो तो देखो चलता रहेगा, लेकिन बात भी यही है कि हमें एक्सट्रोवर्ट होने के लिए हमें खुलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू रिमूव आवर शाइनेस, कि भाई वो क्या जज करेगा हमें फर्क नहीं पड़ता। इसका मैं गोल्डन रूल आपको देता हूँ, जो मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ। मैं एक सिंपल सा प्रिंसिपल ये फॉलो करता हूँ कि यदि मेरी बातों से 5 साल बाद वो इम्पैक्ट करेगा मुझे या सामने वाले को, देन आई विल लुक अपॉन इट, पॉन्डर अपॉन इट, एंड मैं उस पर डिस्कस करूंगा। यदि मेरे को लगता है कि नहीं भाई 5 साल बाद ये इररेलेवेंट बातें हो जाएंगी, मैं भूल जाऊंगा, सामने वाला भूल जाएगा, और ये ना तो मेरे करियर पे ना मेरे पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। दिस इज द वे, इग्नोरेंस इज ऑल्सो अ की टू सक्सेस। या आप हर चीज को यदि पकड़ के चलोगे, देन ऑल्सो यू कांट बी अ सक्सेसफुल। सो ये दो चीजें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं सीरियसली ये चीजें फॉलो करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि ये 5 साल बाद मेरे को क्या इम्पैक्ट करेगा। यदि मेरे को लगता है इट इज इररेलेवेंट, तो मैं आज से इसको सोचना बंद कर देता हूँ, राइट। काफ़ी अच्छा एडवाइस था सीए स्टूडेंट्स के लिए भी।
सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप जब कैलकाटा गए यू जॉइन सेंट जेवियर्स कॉलेज एंड सेंट जेवियर्स कॉलेज इज अ रेगुलर कॉलेज एंड काफ़ी बार देखा गया है सीए स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेज जाना प्रेफर नहीं करते हैं. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट एंड रेगुलर कॉलेज के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो सीए स्टूडेंट्स नहीं उठा पाते हैं. पीयर लर्निंग, वहाँ जाके आप इतने लोगों से मिल पाते हो, आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है लाइफ के प्रति. You even get a chance to network with people. So how was your regular college journey and आप CA students को क्या advice करना चाहोगे? देखो, द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स which you make in the age of being a teenager is your college friends. Yeah. this is a this is a true reality. मतलब आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं आपके एक तो हमारे कॉलेज स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं जब हम बचपन में रहते हैं, और एक फ्रेंड्स हमारे बनते हैं जब हम कॉलेज में रहते हैं, और वो जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत सच्चे फ्रेंड्स होते हैं. तो जहां तक रही कॉलेज में बात, तो मैं जेवियर्स पर्टिकुलर की यदि बात करूं तो एकेडमिक वाइज एक सीए स्टूडेंट ज्यादा नहीं सीखता है, बिकॉज जब से वो सीए करिकुलम में ही इतना Yeah. पढ़ाई हो जाती है कि कॉलेज में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिस इज ट्रू रियलिटी. बट फिर भी एक रेगुलर कॉलेज का इंपॉर्टेंस ये है कि आपका जो इंटरेक्शन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है व्हेन यू इंटरेक्ट. और कॉलेजेस में क्या होता है, बहुत सारी सोसाइटीज होती है, राइट. लाइक यदि मैं पर्टिकुलर सेंट जेवियर्स की बात करूं कैलकाटा की, तो यहाँ पे जेवियर्स कॉमर्स सोसाइटी है, एक्सएमसी है. तो एक सच बताऊं तो एक सीए स्टूडेंट के लिए इसमें एक ऑफिस बियरर की पोजीशन होल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द टाइम प्रेशर, Yeah. क्योंकि साथ में आर्टिकलशिप चल रही होती है. बट आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें. लाइक मैं करता था, एक्सकैलिबर था जो एक्सीएस ऑर्गेनाइज करता है, इंसिग्निया था. सो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो चीजों में. तो ये एक ऑल टुगेदर आपकी एक पर्सनैलिटी में अलग शेप देता है ना. True. सो एक रेगुलर कॉलेज से और एक आप डिस्टेंस कॉलेज के बंदे को यदि खड़ा कर दो तो यू विल गेट टू नो द डिफरेंस कि दोनों के पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस है. और आज के दिन मैं ये मानता हूँ कि नेटवर्किंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्किंग. True. काफी अच्छा आपने पॉइंट मेंशन किया. Yeah. हाँ, तो एक रेगुलर कॉलेज तो हमेशा शुड बी प्रेफरेबल ओवर अ डिस्टेंस और नॉन रेगुलर करस्पॉन्डेंस कोर्स, राइट. इवन मैं जब आप सोसाइटीज़ में काम करते हो, काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया था. यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि टीम में कैसे काम करते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट को या फिर किसी फंक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. वो सभी स्किल्स आपको फ्यूचर कॉर्पोरेट में भी हेल्प करते हैं काफ़ी. हाँ, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि आप लीडरशिप क्वालिटीज भी सीखते हो जो Yeah. कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हो. तो एक रेगुलर कॉलेज की तो बात ही अलग है, देखो कॉरेस्पॉन्डेंस से. तो सो आई ऑलवेज प्रेफर कि बच्चे रेगुलर कॉलेज में जाए, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू देम. सो मैम कमिंग ऑन योर सीए जर्नी, ये सीए करने का मोटिवेशन कहाँ से आया आपको? मैं सच बताऊं तो क्लास 10 के बाद मैंने साइंस ले रखी थी, Okay. बिकॉज वो एक होती है कि भाई बच्चा यदि थोड़ा होशियार है तो वो साइंस लेगा, और कॉमर्स को ऐसा परसीव किया जाता है कि भाई जो कमजोर बच्चे हैं वो कॉमर्स लेंगे, राइट. Yeah. तो मैंने साइंस ले ली थी, और इनफैक्ट मैंने 3-4 महीने साइंस ही पढ़ी, मतलब अप्रैल में जून आई थिंक साइंस पढ़ी थी. बट समहाउ आई वाज नॉट एबल टू रिलेट विद द सब्जेक्ट्स. आई वाज लाइक कि मैं साइंस के लिए नहीं बना हूँ. मेरे को लगता था कि ये चीजें प्रैक्टिकली, दो साइंस ज्यादा प्रैक्टिकल है टू बी ऑनेस्ट एज कम्पेयर टू कॉमर्स. बट उस समय मेरा दिमाग ऐसा चलता था कि भाई साइंस तो एकदम एब्रप्ट है, मतलब ये तो प्रैक्टिकल चीज होती नहीं है, इसमें ये मूल कंसेप्ट क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस क्या बैलेंस करने को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है इधर टू दो उधर टू दो और चीजें बैलेंस हो जा रही है. सो आई वाज लाइक कि नहीं हो पा रहा है. देन आई शिफ्टेड टू कॉमर्स इन मिडल ऑफ क्लास 11, एंड देन वहां से मैंने 12 किया. और फिर सीए जर्नी की बात ऐसी है कि मेरे फैमिली में काफी सीएज हैं, एंड ऑल आर इन अ गुड पोजीशन. तो उनसे भी मेरे को एक मोटिवेशन मिला, सच बताऊं तो, कि सीए इज अ गुड कोर्स फॉर मी. एंड एक बैक ऑफ माइंड में कंफर्ट जोन आ गया था कि सीए कर लेंगे, पता नहीं ऐसा एक कॉन्फिडेंस था कि सीए कर लेंगे, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी. क्योंकि लोगों को भी देखते थे अपने फैमिली में काफी सीएज और काफी अच्छे सीएज हैं, मतलब जिनका काफी नाम है, बीट इन इंडस्ट्री, बीट इन प्रैक्टिस, बीट इन टर्म्स ऑफ डिग्री, एनीथिंग. सो एक अंदर से एक मोटिवेशन था कि उनको देखते थे कि भाई नहीं सीए तो कर लेंगे, तो इसीलिए सीए कर लिया. और थोड़ा पता नहीं इजी लगता था, मतलब सीए मेरे को जब मैंने उसका करिकुलम देखा तो आई वाज लाइक कि नहीं हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं होगा इसमें. कमिंग ऑन योर एकेडमिक जर्नी मैम, आपने आईपीसीसी और फाइनल दोनों में आपकी रैंक्स थे हम्म. एंड मैनेजिंग बोथ आईपीसीसी एंड फाइनल्स along with a regular college,
इसके पीछे क्या सीक्रेट है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर कंसिस्टेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस? मैं कंसिस्टेंट था. It was not a fortnight effort, it was Okay. not a month's effort, it was a regular effort, I will say. And I used to save my time. मतलब मैं टाइम को बहुत प्रेशियस मानता था. फॉर मी टाइम वाज मनी. सो यदि मैं कहीं कम्यूट भी कर रहा हूँ तो मैं घर से ये सोच के जाता था इस कम्यूटेशन को मेरे को कैसे यूटिलाइज करना है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल बिकॉज हियर मैं बहुत ओपन हो रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे जो एक्चुअली मैं फॉलो करता था, सो दैट ये आपके ऑडियंस या आपके व्यूअर्स को काफी हेल्प मिले. तो जैसे मान लो मुझे ऑफिस जानी है तो 1 घंटा का यदि कम्यूटेशन है तो मैं क्या करता था, मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेता था. जैसे इसका है या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट है, उसको मैं घर पे ही मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन कर लेता और उसको 10 बार सुनता था जाते समय हेडफोन लगा के. तो कुछ पोर्शंस मैंने ऐसे भी कंप्लीट किए. तो इसका मतलब देखो, कॉलेज, आर्टिकलशिप, ट्यूशंस काफी हेक्टिक हो जाता है. यदि आप ये 3 चीज भी करो ना तो आपको सोने के लिए सिर्फ 5 से 6 घंटे मिलेंगे ऑन एन एवरेज. मतलब सोने के लिए, मतलब मैं सब काम के लिए, मतलब डिनर से लेकर सोने तक के लिए आपके पास 5 से 6 घंटे रहेंगे. एंड स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड इसके बीच में आपको अपने स्टडीज भी मैनेज करनी है. तो मैं अपने कम्यूटेशन के टाइम को सेव करता था. या ऑफिस में यदि मेरे को खाली समय मिला, क्योंकि ऑफिस जब आप आर्टिकलशिप करते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आपके पास हमेशा ही प्रेशर रहता है 100%. Yeah. आपके पास कभी कभी 80% ऑक्यूपेंसी भी रहती है, कभी 90% भी रहती है. तो जो बैलेंस रहती है मैं उसको यूटिलाइज करता था वहां पे. राइट. और बस ऐसे ही, मतलब द ओनली व्हाट क्रक्स इज दैट यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम ऑप्टिमम. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम. काफ़ी अच्छा पॉइंट मेंशन किया आपने। मैं यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जो कि सीए स्टूडेंट्स काफ़ी दिक्कतें फेस करते हैं टाइम को मैनेज करने के लिए। एनी अदर थिंग्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट, देखो टाइम मैनेजमेंट मैं इसीलिए पहले से बोल रहा हूँ आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो जब आप मेन पेपर लिखते हो सीए में तो वहां पे भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटा में पेपर कंप्लीट ही हो जाएगा. यू हैव, उसमें भी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप अपने आर्टिकलशिप से ही सीखते हो. और सही बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब सीए इज अ कोर्स विच इज मेंट टू बी रियली वर्थ. मेरे को नहीं लगता आज के दिन इंडिया में ऐसा कोई भी कोर्स है जिसका जो पे बैक पीरियड है वो आपके 1 मंथ के सैलरी से निकल जाता है. मतलब आपने जितना भी पूरे सीए में पे किया है, मतलब सीए इंस्टीट्यूट को जितना भी पे किया है, आपकी ऑन एन एवरेज यदि कोई एक 40-50 हजार, 60 हजार कुछ भी कमाए तो उसका 1 से 2 मंथ के अंदर सारा पे बैक पीरियड उसका होता है. राइट. तो बहुत लोग बोलते हैं कि सीए टफ है. और आर्टिकलशिप इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वहां पे आप अपने प्रिंसिपल के गर्दन पे बंदूक रख के काम करते हो. आप सोचो कि आप किसी क्लाइंट है, कोई पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, आप उसकी पूरी अकाउंट्स देख रहे हो, उसकी बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर रहे हो, फाइनल कर रहे हो, एंड वो प्रिंसिपल चेक करके साइन कर रहा है. और कुछ गलती होगी तो गलती आपकी नहीं होगी, वो तलवार आपके प्रिंसिपल पे लटकेगी कल को कुछ गलती हुई तो. भले आपको मिलेगी, बैकफायर आपके पास भी होगा, बट लेकिन जो जिम्मेदारी और जो जवाबदारी उसकी है वो उतनी आपकी नहीं होगी. तो मेरे हिसाब से ये सीए कोर्स बहुत एनरिचिंग है. अभी कुछ माहौल ऐसा था कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी थी इसको लेके, बट मेरा हमेशा से ये ओपिनियन रहा है और आई थिंक फ्यूचर में भी रहेगा कि सीए जो आपको फंडामेंटल, सीए आपको एक फौजी बनाता है. सीए आपको एक फौजी बना, यदि आप सीए बन जाते हो देन यू आर एन आर्मी मैन. और आप लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट को फाइट कर सकते हो. और मैं बताता हूँ सीए बनने के बाद क्या होता है कि यदि आपकी लाइफ बहुत इजी रहती है तो आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा इजी है, लाइफ में कोई एडवेंचर ही नहीं है. क्योंकि आपको आदत हो जाती है वैसे लाइफ की कि मतलब हमेशा कोई चैलेंजेस आए, हमेशा कुछ नया चीज हो, कुछ फेस करना पड़े. आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई और कोर्स इतना जल्दी देता होगा. ट्रू मैम। सो मैम, टॉकिंग अबाउट योर आर्टिकलशिप जर्नी, आपने आर्टिकलशिप पीडब्ल्यूसी से किया, उसके बाद आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मॉन्डेलिस से किया। तो सबसे पहले तो आर्टिकलशिप के बारे में बात करते हैं, कैसी थी वो पीडब्ल्यूसी की जर्नी? देखो, मैंने बिग फोर ज्वाइन किया था फॉर माय स्टार्टिंग आर्टिकलशिप. मैं रिस्क एश्योरेंस सर्विस में था, इंटरनल ऑडिट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. सो बिग फोर्स में जाने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि आप एक तरीका सीखते हो कम्युनिकेशन का, क्लाइंट फेसिंग जो होता है, दैट इज, इट मेक्स यू मोर एग्रेसिव. राइट. सो बिग फोर आर्टिकलशिप से मैंने एग्रेसिवनेस सीखा और एक
तरीका सीखा कि किस तरह से चीज़ों को, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। वहाँ पे आप बहुत सीधे भी नहीं रह सकते हो और वहाँ पे आप बहुत एग्रेसिव भी नहीं रह सकते हो। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। आपको अपना क्लाइंट भी लाना है, एट द सेम टाइम आपको रेवेन्यू भी दिलवाना है। सो ये जो तरीका है, जो बिज़नेस जिसको बोलते हैं धंधा, जो धंधा मैंने सीखा वो बिग 4 में सीखा। फिर मैंने एक मिड साइज़ फर्म जॉइन करी क्योंकि मेरे को डायरेक्ट टैक्स में भी काम सीखना था, क्योंकि वहाँ पे मेरा न एरिया बहुत ज़्यादा नैरो हो जा रहा था। सो आई जॉइन अ मिड साइज़ फर्म जहाँ पे आई इंडल्ज इन डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन। सो मैंने अपने क्लाइंट्स को असेसिंग ऑफिसर्स, कमिश्नरेट, सीआईटी अपील्स में भी, क्योंकि हम आईटी-आईटी तो नहीं जा सकते थे, Yeah. वो वाला काम नहीं था, बट टिल सीआईटी अपील्स तक, कमिश्नरेट तक हमने किया, मैंने फेस किया। मैं अपने पार्टनर प्रिंसिपल के साथ जाता था। और उसके बाद मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मॉन्डलीज जॉइन की मुंबई। सो लाइफ का मतलब ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको एक्सप्लोर करते रहना है चीज़ें, स्टैग्नेंसी नहीं आनी चाहिए। मेरी नवंबर 2018 में एग्ज़ाम थी और मैं मुंबई पहली बार, लाइफ में पहली बार मैं मुंबई मार्च 31 2018 को मैं लैंड किया था और नवंबर 2018 को मेरा एग्ज़ाम था, अटेम्प्ट था। सो ऑल टुगेदर मेरे को वहाँ पे सब कुछ मैनेज करना था। बट और मैं किसी को वहाँ नहीं जानता था। आई हैड वन ऑफ माय फ्रेंड हु accompanied me, आई you must be knowing him. He also featured in your platform. So Shubham Mukherjee. yes, Yeah. so I went with him and we were very fortunate to got admission in one of the premier hostels of Mumbai, Rajasthan Vidyarthi Griha, and it's called a CA, मतलब बहुत फेमस हॉस्टल है पूरे मुंबई का, क्योंकि इसके जो पेट्रॉन है और जो एल्यूमिनस हैं वो राकेश झुनझुनवाला, मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल और मुंबई के जो बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो वो माहौल, मुंबई जाते माहौल हमारा ऐसा बन गया कि हमें मतलब लगा ही नहीं कि हम कोई अलग शहर में आ गए, राइट? तो मॉन्डलीज में मैं कॉस्टिंग में था कुछ समय। मैंने आमिया जो हमारी एशिया पैसिफिक रीजन होती है, क्योंकि वहाँ पे बीयू वाइज कैटेगरी वाइज कंसेप्ट था, तो मैं बिस्किट्स कैटेगरी में था स्टार्टिंग में, Okay. जो आप ओरियो वगैरह खाते हो, कैडबरी की। सो वहाँ पे भी एक बहुत कंप्लीट डिफरेंट लर्निंग थी, जैसा काम हमने कभी किया ही नहीं था। वहाँ पे कॉस्ट ब्रिजेस बनते थे, वेरिएंस एनालिसिस होती थी, हर कॉस्ट का डिफरेंट आपका बाइफरकेशंस होता था। सो एक कंप्लीटली ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एक सिटी भी हमने चेंज करी थी, कलकत्ता से मुंबई गए थे। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ सीए स्टूडेंट्स को कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जरूर, आई थिंक अभी कुछ नोटिफिकेशन आया है सी इंस्टीट्यूट का कि शायद वो इंडस्ट्री पहले ट्रेनिंग का पीरियड वो इंक्रीज कर रहे हैं। पीरियड इंक्रीज हम्म, कर दिया। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ सीए इंडस्ट्री में जाते हैं आज के दिन, प्रोफेशन प्रैक्टिस में कम जा रहे हैं बट इंडस्ट्री में ज्यादा जा रहे हैं। सो दैट विल बी रियली एडवांटेजियस फॉर द एस्पिरेंट्स, राइट? मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि सीए स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए? काफ़ी सीए स्टूडेंट्स के मन में ये दिक्कतें होती है, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। 2 साल तो आर्टिकलशिप उन्होंने कर लिया, अभी एग्ज़ाम्स बहुत करीब होते हैं, तो एग्ज़ाम्स को कैसे मैनेज किया जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ? तो आप क्या रिकमेंड करोगे, सीए स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए? एंड एक बार आप थोड़ा ब्रीफ में अगर प्रोसेस बता पाओ कि आपका कैसा प्रोसेस रहा था मॉन्डलेज में, कैसे आपने अप्लाई किया था, ये सब चीज़ें। मेरा हमेशा से यही एडवाइस रहता है, सीए स्टूडेंट मस्ट गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। मस्ट मींस मस्ट गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। उसका 3-4 रीजंस मैं बताता हूँ। यदि किसी बंदे को प्रोफेशन इंडस्ट्री जाना है पोस्ट क्वालिफिकेशन, और यदि वो सेम कंपनी में जा रहा है, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या होगा, कंपनी उसको एब्जॉर्व कर लेगी, बिकॉज ओके। उसने उसको बहुत कुछ सिखाया है, उसका एक लर्निंग कर्व आ गया है, राइट? सो पोस्ट क्वालिफिकेशन वो कंपनी उसको एब्जॉर्व कर लेगी एंड विद अ गुड पे। एंड कंपनी को भी फ्रिक्शन नहीं आएगा और कैंडिडेट को भी फ्रिक्शन नहीं आएगा, और कैंडिडेट के लिए एक सिक्योर जॉब रहेगी। तो ओके। इसीलिए यदि किसी को इंडस्ट्री में जाना है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना इज अ मस्ट। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में सीखते हो। यदि मान लो आप टेक्निकल चीज नहीं भी सीखते हो, आपसे कोई रूटीन काम ही करा रहा है, दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग फॉर यू। आप उसमें टूल्स, जो कंपनीज के, हर कंपनीज की अपनी टूल्स होती है, बिजनेस इन्फो बीआई टूल्स होती है, और आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट? डेटा क्रंचिंग के तरीके होते हैं। तो ये कि एटलीस्ट आप वो भी सीख रहे हो ना, तो उसके बाद भी आप कहीं पे भी जाओ तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमेशा आपको करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आपके जो नेटवर्क्स बनते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल थ्रू आउट योर लाइफ। लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरेक्ट करो लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि आपने कैसे अप्लाई किया मॉडलिंग में।
तो मैंने अप्लाई नहीं किया था मॉन्डलीज में, उनका कॉल आया था मेरे पास. व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज वी वेयर द फर्स्ट बैच ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो मॉन्डलीज वेयर हायरिंग, एंड दे टुक आउट द नंबर्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स जिनका रैंक्स आया था एंड हु वांटेड टू परस्यू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. So they called me upfront कि भाई आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है तो we have a offer for you. Then I gave my resume and then the interview process started and we got selected. और जैसे यदि नॉर्मल बच्चों को यदि करना है तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के. अभी भी मेरे पास कलकत्ता में 2-3 लोगों का मैसेज आया है कि उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट चाहिए. मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वो उनका नोटिफिकेशन. तो वो इमीडिएट ज्वाइनिंग है उनका. तो यदि किसी को करना है तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशंस काफी आते रहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के, और हमारे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म्स में भी आते हैं. आई थिंक आजकल तो प्लेसमेंट्स भी हो रही है. Yeah. मुंबई में तो है, WIRC में तो ऐसा है कि वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर प्लेसमेंट्स भी होती है आजकल. सो इट्स अ मस्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज अ मस्ट, मेरे को तो ऐसा लगता है. So मैं टॉकिंग अबाउट योर पोस्ट क्वालिफिकेशन जर्नी, सीए बनने के बाद आपने नेस्ले ज्वाइन किया था हाँ एंड नेस्ले उसके बाद फिर आपने ओएनजीसी में शिफ्ट हाँ किया था. हाँ. नेस्ले इज अ प्राइवेट कंपनी, सी इज अ पीएसयू. सो मैं हम्म. बेसिकली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे एक्सपीरियंस रही आपका, और एक सीए के लिए पीएसयू में वर्क करना कैसा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे. सी, मैं पीएसयू का एक जो मिसकंसेप्शन है बहुत ज्यादा मार्केट में कि पीएसयू में एक लेड बैक एटीट्यूड होता है लोगों में. Yeah. बट सबसे बड़ी एडवांटेज पीएसयूज में ये है कि आप यदि बहुत कम एज में एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन करते हो तो आपकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी होगी आगे की, वो बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट है. बिकॉज आज आप इवन E9 पे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हो और आज मैं E1 पे हूँ. तो जो आपकी करियर ट्रेजेक्टरी है वो आपकी बहुत ज्यादा ब्राइट होती है. और पीएसयूज में क्या है कि आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपका कोई प्रोफाइल एरिया बाउंड नहीं है कि आपको यही करना है. इफ यू वांट यू कैन ट्राई अनदर थिंग्स आल्सो, पीपल वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू, राइट. और जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ हार्ड कोर प्रोफेशनल्स हैं जो कि मतलब प्रैक्टिस, मैं आपको सिंपल सी बात पूछता हूँ. आज मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड है, और एक है वाई लिमिटेड जो कि पब्लिक लिमिटेड मतलब पीएसयू है. कंप्लायंस पार्ट में गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी है कि पीएसयूज को बोल दे कि भाई तुम कंप्लायंस मत करो, तुम अपनी जीएसटी रिटर्न मत फाइल करो, तुम टीडीएस रिटर्न मत फाइल करो. जो कंप्लायंस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करेगी वो सारी कंप्लायंस हमारी पीएसयूज के लिए भी तो एप्लीकेबल है. तो उसके लिए भी जो पीछे उसके काम कर रहे हैं तो वो भी एक प्रोफेशनली कर रहा है जो एक प्राइवेट लिमिटेड पे कर रहा है. जो जो टाइमलाइंस टैक्स ऑडिट की एक प्राइवेट के लिए, वो सेम टाइमलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड एक पीएसयूज के लिए भी है, राइट. तो ये डिफरेंशिएट करना कि भाई वहां पे काम लेड बैक एटीट्यूड है, तो वो ये चीज मैंने जस्टिफाई कर दिया कि ये ऐसा नहीं होता है. वहां पे कंपनी चल रही है, इतने दिनों से चल रही है और आगे भी चलेगी. सो हाँ, बट कल्चर वाइज डिफरेंट इसीलिए होता है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा आपको लोग सीनियोरिटी लेवल पे रहते हैं. यहाँ पे एक सीनियोरिटी और जूनियोरिटी का थोड़ा सा फर्क आ जाता है. बट मैं बताऊं कि अभी इतने सारे रिटायरमेंट्स हो रहे हैं आगे, और अभी जो भी यंग फ्रेश ब्लड आ रहे हैं वो एकदम हार्डकोर प्रोफेशनल है. और हमारे यहाँ सब एकदम वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि मैंने तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों का टेस्ट लिया है. Yeah. तो यहाँ पे भी जो हमारी अकाउंटिंग है, जो हमारी ईआरपी सॉफ्टवेयर है, वो एग्जैक्टली सेम वैसे ही फंक्शन करती है. जो भी हम टी कोड्स यूज करते हैं, जो भी जैसे भी देखते हैं, वो एग्जैक्टली सेम होती है. जो भी ऑडिट कोऑर्डिनेशन है, इंटरनल ऑडिट है, गवर्नमेंट ऑडिट है, कैग ऑडिट है, तो वो एग्जैक्टली सेम वैसे ही होती है, राइट. तो आई डोंट थिंक देयर इज अ मच डिफरेंट, इज अ पर्सपेक्टिव डिफरेंट. सो मैं कमिंग ऑन द इंटरेस्ट पार्ट ऑफ योर्स, आपने ये स्टोरी में मेंशन किया था कि आप रीडिंग बहुत करते हो, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख बहुत ज़्यादा देखते हो. तो अगर उसके बारे में आप कुछ बात करना चाहो. मैं एक्चुअली क्या है कि डॉक्यूमेंट्रीज में कॉर्पोरेट्स लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपने इमामी का नाम सुना होगा. इट्स एफएमसीजी कंपनी, बट इट हैज गॉट ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. सो उसके जो फाउंडर्स हैं RS अग्रवाल एंड RS गोयनका जी, मैं इनके बारे में काफी पढ़ता हूँ. इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ. अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के हैं, उनके बारे में पढ़ता हूँ. और यदि बुक्स की आप पर्टिकुलर बात करो तो मैं कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ, जैसे इंडिया 2020, यू कैन विन, हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल. सो मेरा इंक्लिनेशन रहता है कि जो
ऑटोबायोग्राफीज के ऊपर ज्यादा रहता है, इंस्टेड ऑफ मैं फिक्शनल बुक्स नहीं पढ़ता। इफ यू आस्क मी भाई अभी कौन सा फिक्शनल बुक्स पढ़े, तो आंसर इज नो, आई एम नॉट रीडिंग एनी काइंड ऑफ फिक्शनल बुक्स, राइट। सो मैं मुझे ये जानना है आपसे कि सीए स्टूडेंट्स में देखा जाता है मेनली कि वो रीडिंग नहीं करते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर नॉर्मल करिकुलम जो सीए का करिकुलम है, बस बुक्स से हट के वो ज़्यादा रीड नहीं करते हैं। और इसका नतीजा ये होता है उनके उनका जो पर्सपेक्टिव है एक लाइफ के प्रति वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। तो आप सीए स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? व्हाट इज़ द पावर ऑफ रीडिंग, और रीडिंग ने आपको एज अ लाइफ में कैसे चेंजेस किए हैं आपके लाइफ में? इसकी मैं सिंपल से एग्जांपल ये बोलता हूँ, एक आदमी नॉलेजेबल चार लोगों के सामने तभी बोल सकता है अनलेस एंड अनटिल ही इज नॉलेजेबल, और Yeah. नॉलेज आपको पढ़ने से ही आती है। इफ यू मेक मी स्टैंड इन बिटवीन फ्यू पीपल and you want me to speak and interact with them, so that can be done only when I have a knowledge, I have Yeah. something with me. And how do I get that something? By reading only, right? Yeah. सो पावर ऑफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यू शुड, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप करिकुलम छोड़ के ही सब कुछ पढ़ो या बहुत पढ़ो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन एंड अराउंड, हाउ इज बिजनेस फंक्शनिंग, व्हाट आर द न्यू फिनटेक, हाउ इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अफेक्टिंग आवर, मतलब आप एटलीस्ट हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही पढ़ो। हाउ इज द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, व्हाट इज द रेशियो, हाउ इज द जीडीपी ग्रोइंग, how is the currency fluctuations going on, what are the various macroeconomic factors which are, क्योंकि हमारे जो फाइनेंस जो सीए प्रोफेशन है, वी डू अ हार्डकोर टैक्सेशन, हार्डकोर फाइनेंस, हार्डकोर अकाउंटेंसी, बट व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा इन्फ्लेशन आज के दिन, आई डोंट नो, मैंने देखा ऐसे कि लोगों को इकोनॉमिक कंसेप्ट सीए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कम समझ में आती है। वो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन स्क्यूफ्लेशन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। उनसे यदि पूछो कि भाई अभी इस मंथ का सीपीआई इन्फ्लेशन क्या था, और तो थोड़ा फंबल कर जाते हैं, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में थोड़ा फंबल कर जाते हैं। एक क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कैसे हमारे करेंसी इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर रहा है, या ज्यादा एक्सपोर्ट होने से क्या होगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस तरह से फंक्शन करती है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की क्या है, जैसे बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी भी आती है हमारी, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे इतने सारे। तो ये सबका कॉन्सेप्ट्स नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक सीए स्टूडेंट को, जो मेरे को लगता है कि हम फंबल करते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बहुत ज्यादा फिक्शंस पढ़ो, बट एटलीस्ट आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो इर्द गिर्द की बातें विच इज सराउंडिंग योर करिकुलम, दैट यू शुड बी नो, सो दैट यू गेट, कल को आपको कोई बोले कि इकोनॉमी हमारी कैसे फंक्शंस कर रही है, तो आप बोलोगे हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन में है, या हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इतनी जो भी है, बट इसके पीछे आपको फैक्टर्स पते होने चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश इतना अच्छा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सस्ता है। तो आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल टैक्सेशन। वो तो ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, ये कर लेंगे हम, ये हमें पता है, ये कोई पूछेगा भी नहीं। कल को आप चार लोग के सामने खड़े होगे तो वो नहीं पूछेगा कि भाई कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बता दो। तो ये आपकी पर्सनालिटी पे एड ऑन होगा, है ना। आर्टिस्ट में डेली अगर सीए स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर ही पढ़ ले तो उससे काफ़ी नॉलेज हो। एग्जैक्टली आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इसमें भी काफी इनहेंस आपके, आप एडिटोरियल पेज भी यदि पढ़ोगे दैट इज ऑल्सो फाइन। सो मयंक, आपने अपने स्टोरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है दैट हाउ यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो उसके बारे में एक बार आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहो तो। So, Dhuvan, as I said you that I'm a self-made man. So in various parts of my life, I have been helped by and also supported by various people. And यदि मैं उसकी list बनाना चाहूँ तो it will exceed. So Yeah. when I am in a position today, so I also look back कि भाई I also do something which somebody did for me few years back. So वैसे ही मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि that I would try to make someone educated who otherwise would not have been provide because of the financial problems, right? So I always believe in giving back to the society, and there is no harm in that, and I get a full satisfaction in doing it. Okay. ये मैं काफ़ी अच्छी पॉइंट है, और होप सो ये वीडियो देख के काफ़ी सीएज ऐसा कुछ इनिशिएटिव ले अपने लाइफ में भी। सो मयंक, माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू वुड बी दैट आपकी लाइफ की थीसिस है दैट एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज एंड एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट।
आई रियली वांट कि आप ये लाइन एक बार सीए स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन करो, और एनी लास्ट एडवाइस फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स आउट देयर. सी एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज, बिकॉज हमारी लाइफ में जो टाइम रहती है इट इज नॉट द सेम. सो समटाइम्स आपके लाइफ में क्राइसिस रहेगी एंड समटाइम्स इट विल बी वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल. सो इन टर्म्स ऑफ द क्राइसिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको चीजों को क्रैब और क्राई ना करके इसको एक्सेप्ट करो एंड ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर, राइट? क्योंकि हर रात के बाद ही एक सवेरा आता है. एंड फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द सीए एस्पिरेंट्स, आई वांट टू टेल यू कि भाई उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं. एंड सूरज से पहले उठना है मुझे, क्योंकि सूरज से तरह मुझे जलना है. until and unless you burn like a sun, you can't shine like a sun. This is the common philosophy which I personally follow in my life. And I would like all the CS students and viewers who are watching in your platform to be little positive in life, because positivity and optimistic रहना important है. बाकी तो चीजें अपने आप शेप में आ जाती है. So that was a wonderful session, Mayank. Thank you so much for coming on the channel. And that's all from my side. Thank you so much. Thank you, Dhuman. Thank you so much.